معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا، سندھ کے شہر قمبر میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کندیا میں گھریلو تنازع پر فائرنگ، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کی بے رحم لہریں ایک اور جان لے گئیں۔ بیٹوں کو ڈوبنے سے بچاتے ہوئے باپ ڈوب گیا، 5 افراد کو بچا لیا گیا، ایک کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ چکوال کے علاقے مالکانہ کی پہاڑی علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 منشیات فروش ہلاک، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق دونوں منشیات فروش اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد۔ مہنگائی کا طوفان، ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان۔ ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ، علاج معالجہ بھی بحال ہو گیا۔ احمد پور شرقیہ میں زرعی کرپشن، ناقص بیج اور جعلی ادویات سے فصلیں تباہ و برباد ہونے لگیں، کسان پریشان، حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ سیالکوٹ کے عوام کو سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا، 3 سال بیت گئے، گیس کی فراہمی معطل، بل باقاعدگی سے آنے لگے، گھریلو صارفین گیس نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ محکمہ شاہراہات کی لاپرواہی، بہاولپور کی اہم شاہراہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتظامیہ اور حکومتی نمائندوں کی عدم توجہ، علاقہ مکینوں کے لیے آمد و رفت محال ہو گئی۔ میونسپل انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل، عارف والا گنجان آباد علاقہ کچرا کنڈی میں تبدیل، تعفن کے سبب بیماریاں پھیلنے لگی، علاقہ مکین پریشانی سے دوچار۔ چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، سیلابی پانی قریبی آبادی میں داخل، دکانداروں اور مکینوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دنیا کی سب سے بلند شاہراہ قراقرم دوبارہ کھل گئی، لینڈ سلائیڈنگ کے بعد لوئر کوہستان میں پٹن تک شاہراہ کا عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، گلگت اور اپر کوہستان کے لیے شاہراہ بدستور بند۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے وار بے قابو، مزید 44 مریض اسپتال داخل، متاثرہ مریضوں کی تعداد 571 ہو گئی۔ ملتان میں مزید 10، لاہور سمیت دیگر شہروں میں مزید سینکڑوں مریض داخل، سندھ میں بھی نئے 27 کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا مزید 54 زندگیاں نکل گیا، 24 گھنٹوں میں 1308 کیسز رپورٹ، شرح 3% سے کم پر برقرار رہی۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے ہو جائیں ہوشیار، مردان میں بس اڈوں، شاپنگ مالز اور مختلف بازاروں میں چھاپے، گرفتاریاں اور جرمانے عائد، سرکاری دفاتر میں سرٹیفکیٹ دکھانے کی صورت میں سروسز فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، بورے والا میں مرچیں بنانے والے یونٹ سے 3 من مضر صحت ملاوٹ شدہ مرچیں برآمد، بھاری جرمانے عائد، مضر صحت مرچیں تلف کر دی گئیں۔ چولستان اور دستکاری کا صدیوں پرانا ساتھ، چولستان میں بسنے والی ہنرمند خواتین کے ہاتھوں سے بنی رلی، پراندے اور دیگر سجاوٹی اشیاء آج بھی اس خطے کی ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔
اساتذہ کی عزت و تکریم کا عالمی دن۔ یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر کے اساتذہ کو سلام پیش کرنا ہے اور ان کے مقام کو معاشرے میں اجاگر کرنا ہے۔ قوموں کا مستقبل سنوارنے اساتذہ کو سچ کا سلام۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قومی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی بحریہ کے کمانڈر نے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، فوجی اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران افغان صورتحال سمیت خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر سپہ سالار کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک گہرے، قریبی، تاریخی نوعیت کے تعلقات ہیں۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی۔ مختلف شہروں میں معمولی تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ مختلف واقعات میں 3 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ سندھ کے شہر قمبر میں لرزہ خیز واردات پیش آئی۔ مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلح افراد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والوں کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ پولیس نے اندوہناک سانحے کی تفتیش شروع کر دی۔ کندیا میں گھریلو تنازع پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ عارف والا کے گنجان آباد علاقے میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے اور گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگیں، جس کے باعث علاقہ مکین پریشانی سے دوچار ہیں۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ کے گنجان آباد ترین محلہ بھٹہ نمبر 2 میں گندے پانی اور گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ بارش کا پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور بہت بڑا گندا پانی کا تالاب بن چکا ہے، جس سے مچھر اور بدبو پھیل رہی ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر طوفان اور بو میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، جناب ادھر بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، گندے نالے کا پانی آتا ہے، ادھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر مچھر پیدا ہوتا ہے اور لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ اسکول کو رستہ جاتا ہے سولنگ، وہ کچرا پھینکتے ہیں، ادھر سارا وہ رستہ بند ہو جاتا ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ حکومت کے MPA بھی توجہ نہیں دے رہے۔ گندے تالاب کے ساتھ ہی بچیوں کا سکول ہے، بچیوں کا پڑھنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انتظامیہ مہربانی کر کے اس گندے تالاب اور گندگی کے ڈھیر کو ختم کرنے کا بندوبست کرے۔ کیمرہ مین فیض فرید کھچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ باولپور جہانگیر والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور انتظامیہ اور حکومتی نمائندوں کی عدم توجہی کے سبب علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اقبال ملک کی رپورٹ۔ بہاولپور جہانگیر والا روڈ ڈیرہ بکھا سے سول ہسپتال تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی عدم توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ روڈ پر بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے۔ جہانگیر والا روڈ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سول ہاسپٹل سے لے کے ڈیرہ بکھا تک روڈ بالکل ناقص ترین روڈ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کے اور یہاں کے موجودہ MNA MPAs کو کئی بار کہا ہے۔ بہاولپور اگر جائیں نا ہم، ویسے تو اگر روڈ ٹھیک ہو تو 5 سے 7 منٹ میں پہنچے بہاولپور پہنچ جائیں، نہیں تو یہ آدھا سے پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگر ادھر کوئی فوت کی ہو یا کسی کوئی موت ہو جائے، کوئی مریض ہو، 112 بھی بلائیں تو وہ نہیں آتے، وہ کہتے جی خود پہنچے آپ، کیونکہ روڈ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کی جلد سے جلد تعمیر کرائی جائے تاکہ علاقہ مکین اس بنیادی سہولت سے افادہ حاصل کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد اقبال، سچ نیوز، بہاولپور۔ سیالکوٹ میں عوام کو سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ 3 سال بیت گئے، گیس کی فراہمی معطل ہے۔ گھریلو صارفین گیس نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ فاطمی شاہ کی رپورٹ۔ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ کے حلقہ کی عوام گیس کے نہ آنے پر سراپا احتجاج۔ گجرال اور پنڈی پجوڑا میں بسنے والے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے 3 سالوں سے گیس میں اثر نہیں، لیکن بل ہزاروں میں آتا ہے۔ 24 گھنٹے گیس کے غائب رہنے سے خواتین کو گھر والوں کے لیے کھانا بنانا مشکل ہو گیا ہے۔ 4 سال ہو گئے نے گیس کوئی نہیں ہوتی، بل آ کے سٹ کے جانا ہے ایک بندہ۔ 3 سال ہو گئے نے گیس کوئی نہیں آ رہی،
कदी 2000 बिल आ जाता, कदी 3000 आ जाता, कदी 4000 गैस आ। गैस की बंदिश के बायस अवाम ईंधन के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ताहम बढ़ती हुई कीमतों के बायस LPG गैस और लकड़ी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। कैमरामैन टीम के साथ मैं हूं फातमी शाह, सच न्यूज़, सियालकोट। चारसदा की तहसील शब कदर में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। दुकानदारों और मकीनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नादिर शाह की रिपोर्ट। तहसील शब कदर में मंगल की रात से शुरू होने वाली बारिश के बाद सैलाबारी, तेज आंधी और तूफान के बाद शब कदर बाजार के शाहराओं, करीबी आबादी, मार्केटों और दुकानों समेत शब कदर फ्रंटियर कांस्टेबलरी फोर्ट में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का माली नुकसान पहुंच गया है। जबकि शाहराओं में सैलाबी पानी खड़ा होने से कबायली अजला मुहम्मद और बाजावल दीगर इलाकों के मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा और शब कदर के सैकड़ों स्कूल बच्चे भी सैलाब के बाद स्कूल न जा सके। रात भर तेज बारिश, बारी के बाद इलाके में कड़ी फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंच गया है। जबकि अरंडा समानात राबिता पुल को भी सैलाब ने काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है, जिसके बायस हज़ारों लोग घरों में महसूर हो गए हैं। शब कदर बाजार के शाहराए, मार्केटें, करीबी इलाकों के मकानात सैलाबी पानी में डूब गए। करोड़ों रुपए का माली नुकसान पहुंच गया, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में ताहाल कहीं नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से सैलाब मुतासिरीन की परेशानी और मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, शब कदर। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब की बेरहम लहरें एक जान ले गईं। बेटों को डूबने से बचाते हुए बाप डूब गया। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब के मकाम पर नहाते बेटों को डूबने से बचाते हुए बाप डूब गया। दरिया में डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया, जबकि अपने बच्चों को बचाने वाला बाप जांबर न हो सका। रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। निराले महकमे के अनोखे काम। तांदरियावाला के नवाही कस्बा नवा में बिजली की लटकती तार और बिजली की तरसील लकड़ी के बांसों के जरिए होने लगी। सर पे मंडलाती कटी फटी तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। तांदलेवाला के नवाही कस्बा नवा में बिजली की लटकती हुई तारें और बिजली की तरसील लकड़ी के बांसों के जरिए होने लगी। सर पे मंडलाती कटी फटी तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। तहसील तांदलेवाला के नवाही कस्बा नवा के मकी महकमा वापड़ा की गैर संजीदा हिकमत अमली के सबब बिजली की लटकती हुई तारों के खौफ में मुब्तला अजियत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। यही वजह है कि सारिफीन को बिजली की सप्लाई बिजली के पोल ना होने की वजह से लकड़ी के बांसों के जरिए की जा रही है। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों ने कहा कि मुतअद्दिद बार वापड़ा हुकाम को बिजली की लटकती और कटी फटी तारों और बुसीदा लकड़ी के बांसों पे बिजली की खतरनाक सप्लाई के खतरनाक हादसे पर अपनी तशवीश से आगाह किया, मगर कहीं सुनवाई ना हो सकी, जिस पे शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। सराय मुगल में मुगल सल्तनत के दौर का बना हुआ मकबरा खंडरात का मंजर पेश करने लगा। कब्जा माफिया इस मकबरे को मिसमार करके अपनी जमीनों में शामिल करना चाहते हैं। गुलाम अली की रिपोर्ट। सराय मुगल में मुगल सल्तनत के दौर का बना हुआ एक मकबरा जो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं, जिसको हुकूमत वक्त की खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। सराय मुगल के कब्जा माफिया इस मकबरे को मस्मार करके अपनी जमीनों में शामिल करना चाहते हैं। ਇਹ ਜੀ ਮੁਕਬਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ 2 ਜਰਨੈਲ ਸਨ जी ਤੇ कुरान पाक लिखा है जी। सराय मुगल का कहना है कि हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इस मकबरा को कब्जा माफिया से बचाकर हमारी नस्लों के लिए महफूज किया जाए। साथी रिपोर्टर गुलाम शेर और कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चोलिस्तान और दस्तकारी का साथ सदियों पुराना है। चोलिस्तान में बसने वाली हुनरमंद खातीन के हाथों से बनी रली, परांदे और दीगर सजावटी अशिया आज भी मशहूर हैं। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। पोर्ट सब्जल के चोलिस्तान की हुनरमंद खवातीन कम मसाइल के बावजूद कदीम चोलिस्तानी दस्तकारी के फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। देदाजेब रंगों से मज़य्यन हाथों से बने शाहकार बाहिम्मत खवातीन की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं। चोलिस्तान के रेजगारों के मकीम अपनी सकाफत के तर्जुमान समझा जाता है। इनके हाथों से बने रेली, पर्दे, पनखे, चाबी से चोलिस्तानी सकाफत की झलक नजर आती है। रंग बिरंगे मोती, चमकीला तीला, खूबसूरत धागों से बनी अशिया आज भी शहरी इलाकों में बेहद मकबूल हैं, मगर कम मुआवजा मिलने से खवातीन मुश्किलात का शिकार हैं। चोलिस्तानी दस्तकारी सहरा के बासियों का जरिया माश है। ऐसे पसमानदा इलाकों में दस्तकारी सेंटर का कयाम और यहाँ के हैंडमैन वर्क मुतारिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ हम
हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जा। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार कौमी खेल हॉकी के मेगा इवेंट का आगाज कर दिया गया है। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार कौमी खेल हॉकी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी ने किया। I declare the BOK Bank of Khyber KP Hockey League ओपन। केपी हॉकी लीग के मैचों का इनेकाद पिशावर समेत सूबे के 5 अजला बन्नू, DI खान, चरसदा, मर्दान और कोहाट में किया जाएगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच इस्लामिया कॉलेज हॉकी ग्राउंड में मालाकंड टाइगर्स और बन्नू पैंथर्स के माबैन खेला गया। बड़ा एक हॉकी का एक्सपोजर है कि इतने अरसे बाद लीग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम कोई लीग नहीं हो रही थी। केपी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ये लीग करा रहे हैं। केपी हॉकी लीग के मुकाबलों में सूबे की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। टूर्नामेंट के दौरान मालाकंड टाइगर्स ने पहले मैच में बन्नू पैंथर्स को 3-0 से शिकस्त दे दी, जबकि अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चारसदा में भी केपी हॉकी लीग्स के 2 मैचेस खेले गए। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। मोटरवे पुलिस ने चकवाल प्रेस क्लब में रोड सेफ्टी आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। साकिब अब्बास की रिपोर्ट। मोटरवे पुलिस और चकवाल प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम चकवाल प्रेस क्लब में रोड सेफ्टी आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों, असातिज़ा, सहाफ़ियों व दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। रोड सेफ्टी वर्कशॉप से चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर इमरान महमूद का कहना था कि 12.5 लाख लोग हर साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बाग हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हादसात मोटरसाइकिल की वजह से हो रहे हैं, जिसके लिए हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। हादसात की बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन से आगाही न होना। जबकि इस मौका पर एजुकेशन विंग के इंस्पेक्टर सैयद इमरान अब्बास ने मल्टी मीडिया के जरिए कवानीन और हादसात के हवाले से तफसीली लेक्चर भी दिया। रोड सेफ्टी वर्कशॉप के इख्तिताम पर स्टूडेंट से सवाल भी किए गए और सही जवाब देने वालों में ताइफ तकसीम किए गए, जबकि प्रेस क्लब चकवाल के ओहदेदारान व मेंबरान में फर्स्ट एड बॉक्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। खैरपुर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एसएसपी खैरपुर का नोटिस लेने पर एसएचओ थाना बी सेक्शन और चौकी इंचार्ज मिलकॉलोनी के एहलकारों ने कुछ रोज कबल खैरपुर के ताजरों की दुकान से चोरी होने वाली सोलर प्लेटें, बैटरियां और दीगर सामान चुराए पेश अफराद के ठिकानों से बरामद करके ताजरों के हवाले किया। इस हवाले से ताजरान, रहनुमा और एसएचओ बी सेक्शन का कहना था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिस्टम खत्म हो चुका है खैरपुर में। आज हम इस प्रोग्राम में आए थे जिसमें जो दुकानें तोड़ी गई थी और बैटरियां और यूपीएस वगैरह जो सोलर प्लेटें वहाँ चोरी हो गई थी, आज हमने लोगों को वापस किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमसे पहले चोरियां हुई हैं वो भी रिकवर हों, हमारे दौर में हुई हैं वो भी रिकवर हों। पुलिस का कहना है कि ताजरों के साथ दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे, अवाम के साथ मिलकर जुर्म का खात्मा करेंगे, जिस पर सच्चल अंजुमन ताजरान की जानिब से पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज खैर। चिन्योट के नवाई इलाके दरबार ढूंढे शाह के मेले में थप्पड़ कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। पंजाब का रवायती और मकबूल तरीन खेल थप्पड़ कबड्डी आज भी इतना मकबूल है जितना पहले था। यही वजह है कि इसे आज भी मेलों का अहम हिस्सा समझा जाता है। जिला चिन्योट के नवाई गांव दरबार ढूंढे शाह के मेले की 3 रोजा तकरीबात के सिलसिला में थप्पड़ कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैच देखने और खिलाड़ियों को दाद देने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने मैदान का रुख किया। थप्पड़ कबड्डी मैच में खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर डाली। खिलाड़ियों ने दावपेच के जरिए अपने फन का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को खूब दिरगत बनाई। एक खिलाड़ी का अपने मुखालिफ खिलाड़ी को हराना और फिर उसको दोबारा चैलेंज करके जीत जाना इस खेल को बहुत दिलचस्प बना देता है। खेलने का मुख्तलिफ अंदाज होने की वजह से हर खिलाड़ी अपनी एक मनफर्द पहचान बना लेता है और इसे अपनाते हुए मुखालिफ खिलाड़ी को हराकर मैदान में मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। थप्पड़ कबड्डी में बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में नगद इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गयी। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज चिन्योट। अक्टूबर टेक सिंह में हुकूमत की जानिब से महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट।
अक्टूबर टेक्सिंग में महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानब से शहबाज चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। शुरका रैली ने प्रेस क्लब के सामने हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हर शय को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की पहुंच से ये नामुमकिन होगी चीज़ है। ये पेट्रोल देखें 130 रुपए, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी दौरे हुकूमत में ऐसा काम नहीं हुआ। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इशाए खुर्दोनोश की कीमतों में फौरी तौर पर कमी लाई जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। एक तो लोग बीमारी से परेशान हैं, दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस आवाम का जीना महाल हो गया। देखिए अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। मजदूरी करने वाले और निचले तबके के लोगों के लिए बीमारी के वक्त इलाज करवाना नामुमकिन बनता हुआ जा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर की फीस और अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस लोग तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर हैं। गरीब और मजदूर तबका पहले ही अपने घर वालों के 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, लेकिन जब उनका कोई बीमार हो जाता है तो वो अद्वियात की कीमतें महंगे होने के बायस वो उनका इलाज नहीं करवा सकते। मकामी लोगों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा, हमारे जो बच्चे हैं, मुख्तलिफ जो छोटे बड़े अफराद हैं, वो मुख्तलिफ बीमारी बड़े बड़े अमराज में जो है मुब्तला हो चुके हैं। हम खाने के लिए परेशान है तो उनकी जो मेडिसन हम कहाँ से लाएं? हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात की कीमतों में कमी किया जाए ताकि खतरनाक बीमारियों में मुब्तला लोग अपने प्यारों के इलाज करवा सके और मजदूर तबके को फायदा हासिल हो। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदाकोट। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी और पेट्रोल के इजाफे से घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी से दो चार हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। समीउल्लाह की रिपोर्ट। हुकूमत की तरफ से आए रोज एलपीजी गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान दिखाई देते हैं। हाल ही में घरेलू सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 350 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिससे घरेलू सिलेंडर 2050 से 2400 तक जा पहुंचा, जबकि 175 रुपए किलो बिकने वाली गैस 20 रुपए किलो के इजाफे के साथ 200 तक जा पहुंची। एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वाले दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था, गैस की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, पहले 160-170 मिलता था, अब 200 रुपए हो गया। अभी सर्दी आई नहीं, अभी से गैस की लोड शेडिंग और गैस के अंदर इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल की कीमत में इतना महंगाई कर दी है, तो गरीब आदमी क्या करे। अभी तो गर्मी में यह हाल हुआ पड़ा, तो सर्दियों में क्या हाल हो। शहरियों का कहना है कि एलपीजी गैस के रेट्स पर नजरसानी की जाए। शहरियों का कहना है कि एलपीजी गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मामू कांजर में महंगाई का तूफान थम न सका। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घरेलू सार्फिन के लिए सस्ता ईंधन ख्वाब बनकर रह गया। खान उमर दराज बलोच की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह आए रोज मामू कांजर में महंगाई का तूफान थम न सका। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। 4 माह में पहले सिलेंडर 1400 रुपए का मिलता था, जबकि घरेलू सार्फिन का कहना है कि अगर इसी तरह रेट बढ़ते रहे तो आम आदमी के लिए सस्ता ईंधन ख्वाब बनकर रह जाएगा। सर्दियों में गैस के रेट मजीद बढ़ने का खदशा है। महंगाई तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ खान उमर दराज बलोच, सच टीवी, मामू कांजा। अहमदपुर शर्किया में नाकिस बीज और ज़रूरी अद्वियात की वजह से किसानों की फसलें तबाह होने लगी। गरीब किसान परेशानी का शिकार हैं, जबकि किसानों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। मलिक शकील की रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया के गिरदनवा में किसानों की फसलें मुख्तलिफ बीमारियों के बायस बुरी तरह तबाह हो चुकी है। किसानों की साल भर की मेहनत चंद दिनों में ज़ाया हो चुकी है। पेस्टिसाइड इस बार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, मगर हुकूमत की जानिब से खादों के रेटों में बेपनाह इजाफा किया गया है। खाद स्प्रे दे रेट आसमान नाल गाली करें दे पेन साढ़े जितना स्प्रे किते से साढ़े कपाह को नहीं लगे, क्योंकि खाद डीएपी का रेट 7000 से ऊपर चला गया है। किसानों की फसलें तबाह होने के बाद किसानों में वक़्त नहीं रही कि वो डीएपी खरीद सकें। गंदम की फसल को अगर डीएपी खाद न दी जाए तो एवरेज न होने के बराबर हो जाती है। हुकूमत को चाहिए किसानों के लिए खाद, बीज और ज़रूरी ट्यूबवेल पर सब्सिडी का ऐलान करे ताकि किसान गंदम की फसल बआसानी बीज सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुण, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। लिया की तहसील करोड़ लालिसर में नौसरबाजी का वाकया सामने आया। बैंक की एटीएम मशीन से रकम निकालने के लिए आने वाला तालिब इल्म 3,50,000 रुपए से हाथ धो बैठा। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट।
की तहसील करोड़ लालिसन में 900 अरबाजों के बदलते अंदाज निजी बैंक से पैसे निकलवाने आया फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म लुट गया। लुटने वाले तालिब इल्म जैन के मुताबिक उसका वालिद बैरून मुल्क रहता है। अकाउंट में वालिद ने रकम भिजवाई जिसे एटीएम कार्ड के जरिए निकलवाने बैंक आया। 900 अरबाजों ने मुझसे एटीएम कार्ड हथिया लिया। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक रकम लिया पुलिस के अफसर के अकाउंट में मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। अकाउंट ट्रांजैक्शन के मुताबिक तालिब इल्म के अकाउंट से लाखों रुपए की रकम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अकाउंट में मुंतकिल हुई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज सामने आने और थाना में दरखास्त गुजारे जाने के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस तर्जमान से राब्ता करने पर उनका कहना था पुलिस अफसर का भी एटीएम कार्ड 900 अरबाजों ने हथिया लिया था जिसकी रपट भी दर्ज हो चुकी, मगर पुलिस अफसर का एटीएम कार्ड हथिया जाने के बावजूद पुलिस अफसर की जानिब से ब्लॉक न कराना 900 अरबाजी के इस वाक़े में पुलिस अफसर के किरदार को मशकूक बनाता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज लिया। बूरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां की हैं। शहर के वस्त में मुदीर सेहत केमिकल की मिलावट शुदा मिर्चें बनाने वाले यूनिट से 3 मन से ज़ायद तैयार करदा मिर्चें बरामद कर ली गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने बूरेवाला में ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा मारकर तैयार शुदा मुदीर सेहत मिर्चें मकामी नहर में तल्फ कर दी। फूड अथॉरिटी की टीम ने यूनिट के मालिक को मौका पर 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। आज कौम के मेमारों का आलमी दिन है। असातिज़ा के आलमी दिन की मुनासबत से कोहाट में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कोहाट और मेहमान खुसूसी सूबाई रुकन ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने शिरकत की। अली बंगश की रिपोर्ट। तकरीब के मौका पर महकमा एजुकेशन की ज़िली हुकाम समेत असातिज़े कराम और फीमेल टीचर्स के अलावा तलबा व तलबात और सियासी समाजी शख्सियात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डिडक चेयरमैन ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने कहा कि असातिज़े कराम तलबा व तलबात के रूहानी वालिद होते हैं। मैं तमाम जो माशरे के हमारे बाकी तबके के लोग हैं उनको ये पैगाम दूंगा कि जिस तरीके से टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ स्कूलों की हद तक महदूद ना रखें, वो जहाँ भी जाएं टीचर्स की अपनी एक इज़्ज़त है उसको इज़्ज़त दें, क्योंकि यही टीचर्स हैं जो आपके बच्चों की मुस्तकबिल संवारते हैं। इस मौका पर फीमेल डीईओ ने कहा कि दर्स व तदरीस अंबिया अल्लाह का पेशा है, मगर फिर भी हमारे माशरे में असातिज़े कराम को वो मुकाम दिया गया है जो उन असातिज़ा का हक है। असातिज़े कराम ही तो है जो नए नस्ल में इनकलाब बर्पा करके माशरे को हर किस्म की बुराई से पाक करके कौम को तरक्की की राह पर गमजन कर देती है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर दादू के एक स्कूल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात की जानिब से असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया और इस दिन के मौका पर बच्चों ने असातिज़ा को तोहफ़े भी पेश किए। शुएब तहीम की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए दादू के एक स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूल के तलबा और तालबा ने बेहतरीन अंदाज में अपने असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। स्कूल के तलबा और तालबा ने अपनी तकारीर में कहा कि किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में असातिज़ा का अहम किरदार है। असातिज़ा के बगैर मुल्क और कौम की तरक्की नामुमकिन है। एक कौम की जो बड़ी जो कामयाबी होती है ना वो उस्ताद ही होता है। I want to say that teacher is like a candle who burns himself and give light to the others. इस मौके पर स्कूल के तलबा और तालबात का मजीद कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश और असातिज़ा ज़हनी परवरिश करके उन्हें मुस्तकबिल का कारमंद शहरी बनाते हैं। उस्ताद की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वो हस्तियां हैं जो तलबा और तालबात की सलाहियतों को बांटते हैं। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने टेबलोस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल के बच्चों ने अपने असातिज़ा को तोहफे पेश किए और कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद अपने असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के साथ माशरे में उनकी अहमियत को उजागर करना है। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हासिलपुर के मकामी स्कूल में भी टीचर्स डे मनाया गया। सैयद मुबारक अली की रिपोर्ट। उस्ताद कौम का मोहसिन भी होता है और मेमार भी। उस्ताद को एक रूहानी बाप का दर्जा हासिल है क्योंकि उस्ताद अय्याम तफूलियत से लेकर सने बलूगत के पहुँचने तक तालिब इल्मों की जहनी आबियारी करके उन्हें इल्म से रोशनास कराता है। उस्ताद वो मीनारा नूर है जो बच्चे की राह को इल्म हिदायत के चिराग से रोशन कर देता है। दुनिया भर में मुस्तकबिल के मेमारों को भरपूर खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को आलमी सतह पर यौम तकरीम उस्ताद के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी टीचर्स डे इंतहाई जोश व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आलमी यौम उस्ताद के मौका पर स्टूडेंट्स ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीचरों के आलमी मौके पर मैं अपने टीचर को सलाम करती हूँ। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन उस्ताद बादशाह बना देता है। सिकंदर आज़म का कौल है कि बाप आसमान से ज़मीन पर औलाद को लाता है लेकिन उस्ताद जो है वो
ज़मीन से आसमान तक ले जाता है। उस्ताद ही लिखते हैं नई सुबह की तहरीर, उस्ताद ही तारीकी में पैगाम सहर हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।